Good afternoon, everyone. Let's start our peak state programming. How are you all doing today? प्रैक्टिस सबकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है लेकिन यस, वर्क्स लाइक मैजिक की प्रैक्टिस कैसी रही कल? हाँ, अच्छी रही आपके लिए आज Excited. राइट कैसी थी आपके फिर भी लिए? चालू तो हो गया है हम्म हर चीज में बोलना है ना, नहीं क्यों हमको यानी वो ऑब्जर्व रखना है। यस, क्योंकि इनविजिबल पीछे मैनेजर आपके पीछे ही है। और आई फॉलो वेरी नाइस। ओके, सो लेट मी ब्रिंग माय फोन, वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। मम्मी अभी आए नहीं है, मम्मी ज्वाइन होंगे अभी, शी इज आउट। हाँ, आज तो ट्रैवल कर रहे होंगे ना? या she came but she has gone to some place. Okay. She is yet not. Okay. Thank you, Batul. I will send actually a link to them very quick. कभी लिंक नहीं होती इसलिए लोग ज्वाइन नहीं हो पाते। Alifia, today I will not able to read. Okay, no problem. Batul will read today, right, Batul? Okay, but your mic, I can hear you, but very low volume. So see what's problem with the microphone. Okay, so let's start our peak state programming. Peak state programming. Hello friends, I welcome you to peak state programming. This is awesome SRK. I am a business. Faster. Standing in the same position. Just move your hands faster and faster. Everybody turn on your videos. So let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes. Come on, everyone, run. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Very nice. And you say to yourself, we all are the winners. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Yes. Stop. Thank you. And now you say to yourself, yes, I am the winner. I'm the Yes, winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. I Okay, can. repeat. I can. I will. I must. I can. I will. I I must. must. Thank you so much. Okay, so let's start our book again. And today's chapter is again a magical chapter.
Okay, let me share the screen. Batul, will you be able to read today? Yeah, I will be able to read it. Very nice. Now your volume is perfect. Actually, I had a login with my kids' device. That's why. Oh, okay, I okay. have to show my mobile. My something problem is there in my mobile. No problem, no problem. ओके तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर डे 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो जो भी लाइफ में कुछ न कुछ हमारे चलता ही रहता है, तो आज आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जहां पे आपको एनालाइज करना है कि क्या है और क्यों है। तो आप ही की थिंकिंग में कुछ न कुछ होता है, तो आज आपको अपनी थिंकिंग बदलनी है। सो एनीबडी कैन डिस्क्राइब दिस पिक्चर राइट नाउ? Door is there and door is open, half open, and floor is there and magical sparkles are coming out. हाँ, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अंधकार है, बहुत ही ज्यादा, राइट? एकदम डार्कनेस है। और डार्कनेस में से थोड़ा सा ही डोर भी खुला है, ऐसा नहीं कि पूरा खुल गया है। नहीं, थोड़ा ही खुला है। हाँ, थोड़ा ही खुला है, पर उसमें से भी इतनी ज्यादा रोशनी अंदर आ रही है। यानी अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है वहां पे वो एरिया में, तो आज आप करोगे कि थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड वहां पे करने से, या मतलब जो भी है ग्रेटिट्यूड करने से, वो दरवाजा आपके लिए थोड़ा सा भी अगर ओपन हो गया, तो वहां पे वो एरिया में बहुत ज्यादा रोशनी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कैसे करना है यहाँ पे। ओके, सो यू कैन रीड बतूल। Okay. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817 to 1892, president founder of the Baha'i faith. Whether it's relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity. Because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. And we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to other will, just as giving thanks to others will always lead to a life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. तो ये आपको सबको भी ये नियम तो पता चल गए कि अगर आप थैंक्स देते हो तो आपको रिटर्न में वही मिलता है। अगर आपने कहीं पे अनइंटेंशनली भी आपने वहां पे चीजों को ऐसे ही ले लिया कि ओ अच्छा ये तो मेरे हस्बैंड है तो इनको तो ये करना ही चाहिए, या कभी कभी पे लाइफ ने आपको इतना कुछ दिया है पर आप वो देख ही नहीं रहे हो कि जो क्या दिया है लाइफ ने आपको। आप हमेशा इसी में लगे रहते हो कि क्या नहीं दिया है लाइफ ने। तो यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर कहीं पे नेगेटिविटी अभी आ रही है तो कहीं ना कहीं पे बहुत लंबे समय तक आपने वहां पे नेगेटिविटी दी है एक्चुअली, या तो आपने उसको ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है और कभी वहां पे थैंक्स बोला ही नहीं है। हमने अब तक बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि जहां पे भी आप ग्रेटिट्यूड करते हो वो एरिया आपका इंक्रीज होता है, जहां पे आप नहीं करते हो वो जहां पे आपके पास कुछ होता भी है तो वो छीन लिया जाता है। वैसे जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें बहुत अनजस्ट लग रहा था, पर ये ग्रेटिट्यूड है जो हमें हमेशा आगे लेके जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास है लाइफ में अभी, कहीं ना कहीं सुप्रीम ने हमें दिया हुआ है, ऑलमाइटी ने हमें दिया है, पर हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं,
और ऐसी चीजों में लगे रहते कुड़ते रहते हैं जहाँ पे हमें लाइक कुछ नहीं है हमारी लाइफ में, वहां पे हम कुड़ते रहते हैं। पर उसके सामने 90-95% जो चीजें हमारे पास है उसको हम देखते ही नहीं है कि क्या है हमारे पास। इतनी अच्छी हमारी लाइफ होती है, हमारे आसपास सब कुछ वो है जो हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए, तो भी हम उसी पे अटके रहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। ये आपने कहीं 80-20 का भी रूल पढ़ा होगा, 99-1% वाला भी रूल पढ़ा होगा कि 99% लोग जो भी है, 99% लोग क्या करते हैं, ऐसी 1% चीज में अटके रहते हैं जहां पे उनके पास कुछ नहीं है, वो देख ही नहीं पाते, उनकी आंखें ही बंद होती है, उनका पर्सपेक्टिव ही क्लोज होता है जो चीजें उनके पास है, जो 99%। तो ये यहाँ पे ये सेम चीज है यहाँ पे कि कोई चीज को आपने लंबे समय तक वहां पे अगर नहीं एक्नॉलेज किया है तो वहां पे नेगेटिविटी है अभी। तो कोई बात नहीं, आपको अब तक पता नहीं था, आज आपको क्या करना है, वो चीज देखनी है कि क्या है वहां पे, और वो नेगेटिविटी में से भी आपको पॉजिटिव ढूंढ के उसके लिए थैंक्स करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? तो यहाँ Are पे you grateful? बहुत बारीकी से ये समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी जो मैंने वो 99-1% वाला जो रूल बताया कि आपके पास सब कुछ होगा, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास जॉब है तो क्या अभी आप ग्रेटफुल हो उसके लिए जो पे या सैलरी वहां से आ रही है आपके पास? अगर मान लो एक बिजनेस है जिसके ऊपर अभी आप बैठ के अपने घर को चला रहे हो, क्या कभी आपने वो बिजनेस के लिए ग्रेटफुलनेस बोला? मोस्टली अभी क्या होता है, आप हमेशा कंप्लेन करते हो कि देखो ना कोविड की वजह से ऐसा हो गया, मेरा धंधा इतना मंदा हो गया, या फिर करोगे कि देखो ना क्लाइंट्स आते हैं पैसे नहीं देते हैं, उधारी करके चले जाते, यानी कुछ भी आप अपने आप को नोट करना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही बातें लोगों के साथ भी करते हो जो आपको नहीं पसंद है, जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ कंप्लेन है। अगर आपके मान लो आपके घर में आपके हस्बैंड या आपके सास, आपके ससुर, आपके मम्मी पापा, वो लोग अभी कुछ अच्छा भी करते होंगे, मान लो उन्होंने कुछ, आपको लगता है कि उन्होंने ये सब ऐसा 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 आपके साथ किया, पर कोई कई कई बातें ऐसी उनकी होगी कि कुछ अच्छा भी करते होंगे, क्या आपने उनके जो अच्छा किया उसके बारे में कभी किसी से बातें की? मोस्ट प्रोबेबली नो। यू ओनली टॉक अबाउट देम कि हाँ देखो ना ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पैटर्न बनता ही जाता है बचपन से आज तक कि हम लोगों को भी ऐसा ही सुनते हैं कि वो भी ऐसी ही बातें करते हैं हमेशा, जो कंप्लेंट्स वाली बातें होती है। वो ऐसा नहीं बोलते कि हाँ मेरी कार इतनी जबरदस्त है, क्या काम करती है। नहीं, आप बोलो कि अगर कार कभी बिगड़ गई तो हाँ उसके बारे में तो ढंढेरा पीटोगे, जाके सबको बता दो कि यार देखना मेरी कार बिगड़ गई। एक तो यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी होती है कि हमें लोगों की सिंपैथी लेनी बहुत अच्छी लगती है, और भी हम क्या करते हैं, विक्टिम मोड में चले जाते हैं, हम पावरफुल मूड में नहीं रहते उस टाइम पे। अगर आपको अभी अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आपको ही अपने अंदर जो पावर है, आपको अपने खुद को पावर देनी है। जब आप दूसरे के हाथ में पावर देते हो उसका मतलब है आप विक्टिम मोड में हो, कि आपके ऊपर कोई कहीं भी कुछ भी करेगा
आप बस कंप्लेंट्स करते रह जाओगे, ब्लेम्स करते रह जाओगे, उनके ऊपर बस दोष लगाते रहोगे। ये क्या हो गया? एक विक्टिम मोड हो गया। जब आप पावर अपने हाथ में लेते हो, यानी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि हाँ, जो भी मेरी लाइफ है वो मेरी वजह से है, और अगर उसे कोई चेंज भी कर सकता है तो वो मैं ही हूं। मुझे आसपास के लोगों को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर मेरे साथ किसी ने कोई मुझे आके कोई कुछ बुरा 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 बोल के गया और मैं तुरंत ही विक्टिम मोड में चली गई और मैंने सबको बताने लगी, क्योंकि मुझे सिंपैथी चाहिए सबकी। क्या क्या प्रूव करना है आपको सबको? अगर बताना भी है तो क्या फायदा, क्या होगा सबको बता के? मुझे ये बताओ। जितना आप पावर अपने हाथ में लोगे उतनी ही आपकी लाइफ आगे 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 बढ़ती जाएगी। जितना आप पावर लोगों के हाथ में देते हो, दोस्त मरते रहते हो, उसमें आपका ही नुकसान है, आप गिरते जा रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले लो। अगर मान लो चलो अभी आपको लगता है कि सेल्फ वर्थ कुछ कम है, तो नाउ इट्स टाइम दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ। अभी जो ग्रुप में मैंने कल भेजा था, वो किसी के क्वेश्चन थे कि क्या एफर्मेशन करें। अभी आप देखना, इतनी सारी हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। हम पूरे दिन में अपने आप से बोलते रहते कि यार मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं ये काम अच्छे से नहीं ढंग से करती हूँ, मैं टाइम पे पहुंचती नहीं हूँ, अरे मेरी लाइफ में ये है कुछ। कितना सब कुछ चलता है हमारे माइंड के अंदर, इतना डीप होता है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है। इसीलिए जब ये अवेयरनेस में धीरे धीरे आप पहुंचते हो, ग्रेटिट्यूड के साथ आप ये अवेयरनेस में आते हो, और वो अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इतना आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, हाउ मच नेगेटिव आई टॉक टू माई सेल्फ। अभी आपको जो एफर्मेशंस की बातें हैं, आप अगर ऐसा बोलते हो कि आई एम नॉट गुड एट मैथ, तो आपको तुरंत ही वो चेंज करके बोलना है, आई एम कैपेबल, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और हमेशा ये तो माइंड में बोलते ही रहोगे, आई एम अ विनर। मैं हमेशा कुछ न कुछ, जो भी चीज में मैं पढ़ती हूँ वो मैं जीत के ही बाहर आती हूँ। ये अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो नेगेटिव चीजें हम जो बन गई है, बरसों से जो पैटर्न्स बन गई है, उसके सामने हम लोग जीतना चाहते हैं। उसके सामने हमें जीतना है अभी। तो इतना समझ लीजिए कि पावर आपके हाथ में है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ये चीजें, वैसे ही आपकी लाइफ बदलने लगेगी। आपको अंदर से ही ऐसी चीजें, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लगोगे कि जो आपको मदद करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और कंप्लेन जितना हो सके, अगर मान लो सास ने खाली इतना किया कि उन्होंने एक चीज आपको यहाँ से यहाँ के रख दी आपके लिए, आपको करनी थी पर उन्होंने कर दी, तो आपको ये चीज को इतना बड़ा बनाना है, जैसे राई को पहाड़ बनाते वैसे अच्छी बातों को आपको बनाना है, मैग्नीफाई करना है कि वाह इन्होंने ये किया। मान लो इन्होंने कुछ खाना बनाया, या अपने हस्बैंड वैसे कोई कुछ खाना नहीं बनाते हो, अचानक आपके लिए चाय बना दी, तो उसको भी मैग्नीफाई करना है कि वाह क्या चाय बनाई है। क्योंकि क्या होगा इससे, मैं ऐसा नहीं बोलती कि यहाँ पे कुछ फेक करना है, आपको फेक कुछ भी नहीं करना है, पर धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है कि छोटी छोटी चीजों में भी वो बहुत पॉजिटिविटी सोचे। ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपके लिए ट्रेन करने के लिए। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि छोटी छोटी भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में जो होती है, उसको बहुत बड़ा बना दो, बहुत ज्यादा बड़ा, और फिर देखो कैसे मैजिक्स आते हैं आपके लाइफ में। सो लेट्स रीड फर्दर। Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. You can If you are read. complaining, shall I read?
Yes, yes. Go If ahead. you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with with every complaint. यानी देखो कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए अभी आप नोट करना, अभी आपको इतना पता भी नहीं होगा कि कितनी ज्यादा हम कंप्लेन करते हैं। किसी को स्ट्रेंजर को देख के उसको भी जज करके उसके बारे में भी कंप्लेन करते हैं, जब हालांकि हमारा कुछ उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं होता है। कभी 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 वेट करते हैं लाइंस में या सिग्नल पे रुक गए, हमें लेट हो रहा है तो हम उसकी भी कंप्लेन करते हैं। बिल्स आते हैं तो बिल्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि यार देखो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना बड़ा आया। हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, यानी जो देश में हम रहते हैं उसकी इकोनॉमी के बारे में भी कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो इतना समझ लो, ये आप भले ही कंप्लेन करते हो, इकोनॉमी का तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, पर आपकी लाइफ में जरूर आप लोग ये कंप्लेन वाली चीजें और अट्रैक्ट करोगे। यानी ये सब इतनी बारीकी से ये चीज समझने की यहाँ पे जरूरत है। जितना आप कंप्लेन करोगे इतना ही आप अपनी ड्रीम लाइफ को आपके आपसे नजदीक लाने की जगह उसको फर्दर पुश करते रहोगे। आपने लिखे है ना अभी कुछ ना कुछ तो ड्रीम्स लिखे होंगे पहले हम थर्ड डे पे जो हमने लिया था। तो वो ड्रीम्स को अगर आपको साकार करना है, अगर आपने सपनों को साकार करना है, तो आपको आज से ये प्रण ले लो कि कुछ नेगेटिव बोलना नहीं है किसी के लिए भी। तो किसी चीज के बारे में, सर्विस के बारे में, मान लो कभी आपको किसी सर्विस ने डिच भी कर दिया, प्लीज डोंट से वर्ड अबाउट दैट कंपनी टू अदर पीपल। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो धंडेरा पीटो, सबको बताओ कि यार इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी। पर अगर किसी की सर्विस अच्छी नहीं है, उसके बारे में बिल्कुल मुंह चुप्पी करके बैठ जाओ, किसी को नहीं बताना है। एक बात समझ लो, अगर आपको ये सर्विस मिली है जो आपको चीट करके गया या जो भी है, कहीं ना कहीं पे उसके पीछे भी आपके थिंकिंग में कुछ ना कुछ होगा। अभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, अरे आपको नहीं पता चलेगा। ये बहुत डीप चीजें होती है, धीरे धीरे आपको पता चलेगी कि हाँ यार इसको तो मैंने ही अट्रैक्ट किया था कहीं ना कहीं पे। तो इसीलिए बोल रही हूँ। और दूसरी बात, सुबह उठ के तुरंत जिन लोगों को न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, भाई अपने आप को प्लीज बख्श दो। यहाँ पे अगर आप ऐसी चीजें देखते हो जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही दिखाई देता है, मैं बोल रही हूँ आपको कि वो बहुत सबकॉन्शियस को अफेक्ट करता है। आप बोले हो आपको पता नहीं चल रहा है अभी कि वो कैसे आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है वो सब चीजें। ऐसी सब चीजों से तो दूर ही रहो। क्राइम पेट्रोल ये सब नहीं देखना है आपको, अभी क्राइम पेट्रोल सीरियसली मैं बताती हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस पे अफेक्ट करेगा। वो कहीं ना कहीं पे फिर वो ऐसी, अगर आपने उसको वहां पे डर या कुछ भी पावर दे दी वो चीज को कॉन्शियस माइंड से, तो फिर तो चलो आज नहीं तो कहीं ना कहीं पे फिर कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। मैम मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ। अगर हमारे घर में किसी ने बोल दिया कि आपका वास्तु के हिसाब से बराबर नहीं है, तो वो डर जो घुस जाता है घर में हमारे मन में, वो कैसे हटाने का? बहुत ज्यादा चेंजेस तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर हमें वो मगज में से निकालना है कि भाई ये मेरा वास्तु के हिसाब से ठीक है, और ऊपर से थैंक यू बोलना है कि इतना अच्छा घर है। तो वो मैं कैसे लाऊं अपने में? बस ये अंडरस्टैंडिंग से, जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि यार ये तो मेरी थिंकिंग है जो अफेक्ट करती है, वास्तु ये सब आई डोंट नो हाउ मच इट वर्क्स और वट एवर इट इज, पर जब आप अपने थिंकिंग में ही सब कुछ ठीक कर देते हो तो अपने आप चीजें, अपने आसपास का एनवायरनमेंट खुद ही बदल जाता है। जैसे जैसे नीलम जी आपको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ ये सब कुछ अफेक्ट नहीं करता है, अगर मेरी लाइफ में कुछ भी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी थिंकिंग, मेरे विचार।
तो अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है, धीरे धीरे जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते जाओगे ये सब चीजें। आपने ये मैजिक बुक पहले की है नीलम जी? नहीं की है। हाँ मैंने हाँ। सीक्रेट ऑफ द लाइफ पूरा पढ़ा है, हम्म। पर मैंने वो बहुत सालों पहले पढ़ा था और मैंने बहुत फॉलो किया था उसको। अच्छा अच्छा। मैंने इतने लोगों को उसके बारे में बताया था और सब लोग फॉलो करते थे। लेकिन अभी क्या है, थोड़े सालों से मैं ही मुझे लग रहा है कि मुझे और बढ़ाना चाहिए अपने। इसमें क्या होता है नीलम जी, मैंने भी जैसे सीक्रेट पढ़ी थी, जब हम अनगाइडेड कुछ चीजें पढ़ते हैं ना, कितनी सारी चीजें तो हम समझ ही नहीं पाते। जैसे मैंने सीक्रेट पढ़ी थी 3 बार, मैंने फर्स्ट टाइम जब मुझे मिली थी सीक्रेट बुक, मैंने 3 बार पढ़ी थी, तो भी मुझे कई कई चीजें ही समझ में आई थी। फिर क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। हमारे जो बिलीफ्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इतने सालों से हम एक्वायर कर रहे हैं वो बिलीफ्स को, वो बहुत पक्के होते हैं हमारे माइंड में। तो ये जो बिलीफ्स है हमें, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। यानी बुक भी हमें इतना ही रिवील करेगी जितना हम उसकी हमारी कैपेसिटी होगी उस टाइम पे। पर जब आप कुछ गाइडेड करते हो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हायर लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा। बराबर बराबर हाँ। है। तो जैसे अभी आपको मैं इतना ही बताऊंगी नीलम जी, कि आप ये प्रोसेस में रहे, धीरे 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 आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। जैसे जैसे आप ये नॉलेज लोगे तो धीरे धीरे ये जो ऐसी जो छुटक छुटक बिलीफ सिस्टम बनी हुई है ना, जिसको ज्यादा पावर नहीं मिला है, जो अभी भी आप धीरे धीरे चेंज कर सकते हो, वो इजीली आप चेंज कर पाओगे। तो या एफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफर्मेशंस तो करते ही रहे जो भी करने हैं, पर उसके साथ साथ ये चीजों को पावर देना बंद कर दें। अगर अभी आपके माइंड में आता है कि यार वास्तु वास्तु जो भी है, तो अभी इतना समझ लो कि अगर जो लोग आपको बोलते हैं क्या उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है? आप पहले ये बोल दो मुझे। जो भी लोग आपको अगर कुछ बारे में आके बताते रहते हैं कि नहीं नीलम तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, या तू ऐसे क्यों नहीं करती है, क्या उनकी लाइफ परफेक्ट है? कुछ ना कुछ वो भी अपने बिलीफ सिस्टम से ही निकल के आपको बोल रहे हैं। तो हाँ, बराबर। उनके लिए आप कंपैशन रहो, कंपैशनेट रहो कि चलो इनके पास जो रिसोर्सेस है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। पर आपको अंडरस्टैंडिंग लानी, इसीलिए मैं बार बार बोलती कि पावर आपके हाथ में है। किसी और को पावर देनी ही नहीं अपनी लाइफ के लिए। बराबर। समझे ना? हाँ। जो लोग बोल भी रहे होंगे आपको क्या उनकी लाइफ बिल्कुल तरह से परफेक्ट है, तो ही उनकी बात सुनो। अगर बराबर। मैजिक बुक किसी ने परफेक्टली प्रैक्टिस की है 10-12 महीने, तो उसी की बात सुनना। कोई नव सिखिया अभी आया है और अगर अगर आपको मैजिक बुक के बारे में भी बताता है तो उसकी बात नहीं सुनना, क्योंकि क्या उसने प्रैक्टिस की है? नहीं। बराबर। हाँ। तो ये जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी, आपको समझ में अभी आता जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stop the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. हाँ, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में अभी है, चलो जो पिछली लाइफ में जो भी था उसको भूल जाते हैं, नई लाइफ चालू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने अगर आप ज्यादा से ज्यादा शुक्राना फील करते हो, हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढ के उसको थैंक करते रहते हो, ऑलमाइटी को थैंकफुलनेस से हमेशा एड्रेस करते हो, बोलते हो कि नहीं चलो ये जो भी है, नाउ आई वांट टू अपग्रेड माय लाइफ, नाउ आई वांट टू सी द पॉजिटिव। तो जैसे ही आप ये सब चीजों में शुक्राना करना चालू करोगे,
जो भी नेगेटिव सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में होगी वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगी, जैसे पफ ऑफ स्मोक के जैसे। ये मैजिक्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, सब मैजिक्स होंगे। बस आपको ये मैजिक बुक के साथ रहना है और ये प्रोसेस के साथ जैसे जैसे ये बुक बोल रही वैसा करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. हाँ, तो Disney's आज हम लोग ये 1960 पोलियाना मूवी की लिंक शेयर करेंगे, आपको ये देखनी है मूवी। इतनी जबरदस्त मूवी है, हम लोगों ने सबने साथ में देखी थी जब फर्स्ट हम लोग ये मैजिक बुक कर रहे थे। तो संडे आया था उस टाइम पे बीच में, तो हमने संडे को सबने मिलके ये मूवी देखी थी और मैंने गाइडेड मूवी जैसे था। तो बिकॉज इट्स अ ब्रिटिश इंग्लिश सभी लोगों को नहीं समझ में आती है, तो मैंने पूरी मूवी समझाई थी। तो इसीलिए आपको भी ये पोलियाना मूवी देखनी है जो वॉल्ट डिज्नी ने बनाई थी। ये वॉल्ट डिज्नी की जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरी जितनी भी उनकी मूवीज है आप देखोगे ये मैजिक टाइप की मूवीज ही होंगी उनकी। जैसे कैसी मूवीज होती है उनकी जिसमें हमेशा ये कुछ न कुछ पॉजिटिविटी बताते हैं। जैसे ये मूवी में भी ये जो लड़की होती है छोटी सी, उसकी मासी के पास वो रहने जाती है बिकॉज हर मॉम डैड आर नो लॉन्गर अलाइव। तो उसके वजह से वहां पे जाती है उनके साथ रहने, और इतनी सारी नेगेटिविटी आसपास होती है, पर उसके पापा ने उसको एक ही चीज सिखाई थी कि ग्लेड गेम खेलना, कि कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढना। ऐसा उसके पापा ने सिखाया था। और ये इतनी जबरदस्त गेम वो खेलती है, पूरी मूवी में वही बताया है। लास्ट में उसके साथ कुछ नेगेटिव, उसने पूरे गांव को बदल दिया है। जो टाउन होता है उसके टाउन के पूरे लोगों को उसने बदल दिया था धीरे 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 करके। और लास्ट में उस खुद के साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है, उसके खुद के साथ एक नेगेटिव सिचुएशन होती है, तब वही मैजिकल स्पार्क वापस वो लाके वो सही तरह से ठीक भी हो जाती है। जहाँ पे डॉक्टर्स ने तो बोला था कि लाइफ टाइम की ये उसकी कंडीशन है, पर पूरे गांव के लोगों ने भी उसको इतना प्यार दिया क्योंकि वो हमेशा प्यार बांटती थी। तो आपको ये मूवी देखनी है, आपका मतलब बहुत आपका जो इंसाइट। हाँ, अभी एक और बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर आप टीवी में भी कुछ देखते हो तो कुछ पॉजिटिव ही देखो। ऐसे सीरियल्स तो बिल्कुल भी मत देखो जहाँ पे सास बहू झगड़ रहे हैं, जहाँ पे कोई ऐसी औरत है जो जिसके सभी के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव करती रहती है, वहां पे वो सामने वाला विक्टिम बना रोता रहता है। प्लीज ऐसी चीजें मत देखो। ये चीजें आपके सबकॉन्शियस को बहुत अफेक्ट करती है। इसीलिए मैंने जब से ये छोड़ा है मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बदल गई। जब मुझे ये चीजें समझ में आई, बहुत सालों हुए अभी, तो मैंने ये सब चीजें देखना बंद कर दिया। तो जैसे ही मैंने वो देखना बंद किया, टोटली मेरी लाइफ अलग दिशा में चलने लगी। तो हमारे पास जो भी टाइम है उसको अच्छे से कुछ में यूटिलाइज करो। अगर देखना ही है तो कुछ ऐसा देखो जो कुछ पॉजिटिव हो, जो आपके लाइफ में ऐड वैल्यू करता है। जैसे मैं जब ड्राइव बैक कर रही थी वहां से, जैसे 10 घंटे का रास्ता था, वी वर ड्राइविंग बैक ऑन मंडे। तो हम लोगों ने ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऐसे ही, चलो मैंने सोचा चलो ये मूवी स्टार्ट करते हैं। वो मूवी देखी, मुझे उसमें इतना मजा आया क्योंकि कहीं ना कहीं पे इतनी सब कुछ चीजें उन्होंने की, वो 3 फ्रेंड्स ने मिलके, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड थी। जैसे उन्होंने डाइव किया था समुद्र के अंदर, जो डीप डाइव किया था वहां पे उनको इनके लाइक दिल को छू गई ऐसी बातें उन्होंने नोटिस की खुद के बारे में भी, कि समुद्र के अंदर जो लाइफ होती है वहां पे जो फिश है, ये है कोरल लीव्स है, उसकी जो लाइफ उनको जो टच कर जाती है, फिर वो अपने डरों अपने अपने अंदर के कोई कोई इमोशंस है जो जो बाहर लाने होते हैं,
जिसको खाली करना होता है वो सब भी करते हैं वो लोग, वो तीनों फ्रेंड्स। यानी इतनी पॉजिटिव मूवी थी। तो हाँ, ऐसी मूवीज हमें देखनी चाहिए जो हमें विजुअलाइजेशन भी मदद करती है। यू नो, जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो विजुअलाइजेशन में आपको मदद मिलती है। अगर स्पेन जाना है तो वो मूवी देख के मुझे बहुत फायदा होगा कि मैं वो जो सड़कें बताते हैं जहाँ पे वो लोग घूम रहे हैं या डीप डाइव कर रहे हैं, वो लोग स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आप विजुअलाइज कर सकते। तो ऐसी मूवीज देखें जो आपको अपलिफ्ट करती है। जैसे आमिर खान की ये मूवीज होती है, जैसे 3 इडियट्स हो गई या कोई भी, कितने सारे उसमें मैसेजेस भरे होते हैं। ऐसी मूवीज देखे जो आपको अपलिफ्ट करेगी लाइफ में। ऐसी मूवीज मत देखे जो आपको जहां और नेगेटिविटी में लेके जाती है। सो लेट्स रीड फर्दर। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. यानी ये मूवी जरूर देखना, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ का कि कैसे नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ जरूर होता है वहां पे पॉजिटिव ढूंढने के लिए। मान लो कहीं पे आप जा रहे थे, वहां पे आपकी अचानक से कार बिगड़ गई, तो वहां पे भी अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते हो कि चलो ऐसी जगह पे कार बिगड़ी है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। यानी वहां पे भी कुछ ना कुछ जरूर होगा पॉजिटिव ढूंढने के लिए, भले वो एक नेगेटिव सिचुएशन है अगर आप देखोगे तो इसीलिए ये पूरा चैप्टर ही इसी के बारे में है। अगर आप अच्छी तरह से ये चैप्टर समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे ये करना है। तो लेट्स रीड फर्दर। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use this same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for we didn't learn a lot today. At least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick, and if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." तो ये गौतम बुद्धा जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, इन्होंने ये बहुत ही डीप ये वाली बात बताई है यहाँ पे। आपको लगेगा कि ऐसे क्या डीप है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। हम यहाँ पे आए हैं कुछ न कुछ पर्पस की वजह से आए हैं, और एक एक दिन हमें कुछ सीखना होता है। ये लाइफ ही हमें इसलिए मिली है यहाँ पे कि हम आए यहाँ पे सीखे, अपने आप अपनी सोल को अपग्रेड करें। पता नहीं हम कितने हजारों लाइफ से यहाँ पे वापस रीबर्थ होते, रीबॉर्न होते, वापस मरते, वापस बोर्न होते हैं। पर अगर आपको ये लाइफ अभी मिली है, ये जो भी हमारी लाइफ है, इस लाइफ में एक एक दिन एक एक पल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं बुद्धा कि लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल, तो चलो आज थैंक करते कि कुछ तो सीखा हमने। अगर बहुत ज्यादा नहीं भी सीखा तो कुछ तो सीखा। आप लोग यहाँ पे आए हो, यहाँ पे कुछ तो सीख रहे हो, तो प्लीज थैंक गॉड कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिला आज। फिर उन्होंने क्या बोला कि चलो अगर आपने कुछ नहीं भी लर्न किया तो एटलीस्ट आप बीमार नहीं हुए। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट आपकी हेल्थ तो अच्छी है, अभी भी आप सीख सकते हो, अभी भी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और उन्होंने फिर आगे क्या बोला कि अगर आप सिक भी हुए हो, आज मान लो आप अगर बीमार भी हुए हो, पर एटलीस्ट यू डिडंट डाई, उसके लिए थैंकफुल रहो कि एटलीस्ट हम मरे तो नहीं, चलो अगर सिक हुए हैं तो कल ठीक हो जाएंगे। एक होप है, एक पॉजिटिविटी वहां पे है। पर ये लाइफ आपको जो मिली है, ये एक्चुअल में ये लाइफ आपको सीखने के लिए मिली है। कुछ न कुछ आपको सीखना है।
कुछ नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से भी सीखना है, हमारी मिस्टेक्स है उसमें से भी सीखना है, लाइफ जो हमें टेस्ट करती है उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखना है। यानी एक एक पल हमारे लिए कुछ ना कुछ ये चैलेंजेस है जो भी है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रही है। दैट्स इट, पूरी लाइफ इसी के बारे में है। तो ये बहुत ही यहाँ पे हमें समझना है कि जो भी है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना है, थैंक करना है गॉड को, ऑलमाइटी को। सो लेट्स रीड फर्दर। Let Buddha's word be your inspiration. And today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. And look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. तो यहाँ पे देखा ना आपने कैसे बुद्धा ने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि एटलीस्ट अगर आप बीमार हो तो आपको भी लगेगा कि कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, उसमें क्या मैं पॉजिटिव ढूंढूं। तो हाँ, उसमें भी पॉजिटिव था ना कि एटलीस्ट आप अलाइव तो है, अभी भी आपके पास ये लाइफ है, अभी भी आप उसको कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हो। ये 360 डिग्री चेंज हो सकती है अगर आप ठान लो कि हाँ मुझे करनी है। ये आप ही के अंदर है, आप ही के पास वो पावर्स हैं। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। As an example, your problem might be that you're out of work, and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some example of what you might say. तो यहाँ पे इन्होंने I'm so grateful to have had more time. या बतूल, आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल मोर। तो यहाँ पे आपको आज क्या करना है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन है, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि एक लड़की है, वो अभी अनएम्प्लॉयड है, 6 मंथ्स है, उसको जॉब नहीं मिले, इतने ट्राई करने के बाद भी उसकी जॉब चली गई है, शी इज आउट ऑफ वर्क। उसने इतने सारे एफर्ट्स लगाए पर उसको नहीं मिल रही है जॉब। तो अभी ऐसी सिचुएशन कितनी नेगेटिव सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू डू अ कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑन द सिचुएशन। ये यहाँ पे समझना है कि आपको ये सिचुएशन के बारे में रोज रोज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब उसको रोज रोज करनी पड़ेगी और रोज रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के उस पे 10 चीजें आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको कोई सिचुएशन को मैजिकली टर्न अराउंड करना है, तो उसको पूरी तरह से बदलना है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस लगेगी, इतना समझ लेना। भले आपके लिए ये कल की एक प्रैक्टिस है, पर अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव है, तो अगर आपको उसको बदलना है तो आपको ये रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इतना आपको यहाँ पे समझना है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल कि कैसे वो लड़की ने अपनी ये नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढा। सो लेट्स रीड। I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. या तो यहाँ पे आपको देखो कि इतने ऐसी सिचुएशन में भी कैसी कैसी चीजों के लिए उसने पॉजिटिव सोचा और बोला।
कि चलो एटलीस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी अगर जॉब चली भी गई तो चलो यार फैमिली का सपोर्ट और एनकरेजमेंट तो अभी भी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैंने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, या मुझे रेस्ट मिला, यानी कितनी सारी चीजें उसने ढूंढ ली यहाँ पे कि चलो एटलीस्ट मुझे भले यहाँ पे अभी जॉब नहीं भी होगी तो भी वो बोल रही है कि चलो कुछ ना कुछ नई जॉब रोज आ रही है। और फर्स्ट टाइम है कि ऐसे उसने वो जॉब के बिना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए भी वो पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड कर रही है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें होती है, हमें खाली ढूंढनी होती है। चलो लेट्स रीड फर्दर। As a result of the unemployment person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that a negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. हाँ, यानी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है नेगेटिव में से, और जैसे ही आप ये स्टार्ट करोगे मैजिकली आपकी करंट सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और देयर आर अनलिमिटेड वेज द नेगेटिव सिचुएशन विल चेंज। इतना सब कुछ अलग अलग तरीके से ये यूनिवर्स करता है नेगेटिव सिचुएशन में कि आप ही हैरान हो जाओगे कि वाओ ऐसा भी होता है। बस आपको क्या करना है, खाली ग्रेटिट्यूड देना है वहां पे। ओके, सो लेट्स रीड अनदर एग्जांपल। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful that most of the relationship in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood, because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me, because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a great understanding with my children. I am grateful to my father for showing how much important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father, because in the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. यस, तो यहाँ पे इनके पापा उनको बहुत डांटते हैं ये बच्चे को, यानी यहाँ पे जो भी है उसको इतना यानी नेगेटिव सिचुएशन है पूरी फादर के साथ, तो भी यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव है जो उसने ढूंढी कि एटलीस्ट उसको अब, और उसने वो सिचुएशन में से क्या क्या सीखा वो भी वहां पे ये बता रहे हैं। यहाँ पे वो कितनी सारी चीजें उसने लिखी, यहाँ पे 10 चीजें उसके अंदर भी डिटेल में लिखा कि अगर टफ टाइम्स के थ्रू मेरे फादर ने हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प की है हम लोगों को, गुड टाइम्स भी आए थे जहाँ पे वो बहुत अच्छे से भी उन्होंने बिहेव किया था। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट उनके पास फादर तो है, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के बाद आपको मैं ये एक बात करूंगी कि आपके मम्मी पापा जो भी है जैसे भी है, उनके रिसोर्सेज के हिसाब से उन्होंने जो भी आपको दिया, आपको यहाँ पे उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना है। वो आपका सोर्स रिलेशन है जिसमें से आप आए हो ये धरती पे, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका रिश्ता उनके साथ जितना हो सके इतना ज्यादा अच्छा हो। अगर वहां पे आपको
आपके मन में कुछ भी है अपने मम्मी पापा के लिए जो आपको नहीं पसंद है, जो ऐसी कोई चीजें है, तो उसको भी निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालोगे? उनके लिए भी शुक्राना करके, जितना हो सके अपने मम्मी पापा के लिए शुक्राना करो कि उन्होंने अब आपको लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, आपके लिए आपकी सब नीड्स को पूरा किया। आपको लगेगा कि नहीं माँ बाप है तो ये तो उनका फर्ज बनता है, नहीं, कोई किसी का कोई फर्ज नहीं बनता है यहाँ पे। ये हम इतने लकी है, हम इतने नसीबदार है कि हमें इतने अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने हमें इतना बड़ा करके इतना लायक बनाया आज। तो आपको ये यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि अपने सोर्स रिलेशन यानी मम्मी पापा के साथ आप पीस में हो। ये बहुत ही जरूरी है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आपको कभी कभी स्टक फील करवाएगी। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये अभी ये टॉपिक निकला है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, लेट्स रीड फर्दर। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son change the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and the relationship must begin to improve immediately. यहाँ पे अगर इन्होंने बताया चलो कि हाँ आपको अपने फादर के लिए अच्छा सोचना है, मतलब जो सन है यहाँ पे उनकी बात है, तो उसने अपने पूरे थिंकिंग को चेंज किया, अपने फीलिंग्स को अपने फादर के लिए बढ़ा दिया, रिस्पेक्ट बढ़ा दिया, जो भी है इतनी पॉजिटिव चीजें ढूंढ के उसने ये सब किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्सल लॉ है उसकी वजह से जो भी है वो ऑफकोर्स वो अट्रैक्ट करेगा कि अपने फादर के साथ उसकी जो भी रिलेशन है वो मैजिकली इंक्रीज होगी, क्वांटम लेवल पे इंक्रीज होगी। ये सब क्वांटम लेवल की चीजें होती है जो एनर्जेटिक फील्ड्स होते हैं। अगर हम किसी के बारे में, अगर मैं मान लो यहाँ पे बतूल के बारे में अगर कुछ अच्छा सोचती हूँ मैं, भले थोड़ा सा ही बहुत, पर हाँ वो उसकी तरफ वो पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम लेवल की बातें हो रही है। भले बतूल मेरे से बहुत दूर है, मैं यूएस में बैठी हूँ, बतूल इंडिया में है, पर मैं अगर उसके बारे में कुछ अच्छा सोच के उसको कुछ ब्लेसिंग्स भेजती हूँ, वो जरूर उसको फील होगा। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है, क्वांटम लेवल पे वो जो काम करता है। जैसी फ्रीक्वेंसी आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ जिस चीज को भेजते हो, वो चीज वो फीलिंग्स, वो फ्रीक्वेंसी वहां पे जरूर जाती है। तो अगर इसने यहाँ पे अपने फादर के लिए कुछ अच्छा सोचा, फीलिंग्स भी अच्छी जनरेट की, तो वो जरूर जरूर वो उसके फादर की तरफ पहुंचेगी। जैसे कल नीलम ने अपने हम लोगों को बताया जो भी उसकी सिचुएशन थी, और जैसे ही मैंने उसको बोला कि बहन के लिए शुक्राना करना है, जैसे ही वो 10 शुक्राना लिखेगी अपने बहन के बारे में, 10वें शुक्राने तक आते आते उसको वो फीलिंग्स भी जनरेट हो जाएगी अपनी बहन के लिए, जो अच्छी फीलिंग्स है, गुड फीलिंग्स। तो वो जैसे ही वो फीलिंग्स जनरेट होगी, अपने आप सिचुएशन बदल जाती है। यहाँ पे क्या होगा कि अब वो क्वांटम लेवल तक अपनी बहन की तरफ वो फीलिंग्स जाती है, और कहीं ना कहीं पे वो रिलेशन ठीक होने लगता है। ये सभी चीजें क्वांटम लेवल पे होती है। यहाँ पे मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि नहीं जाके बहन के सामने बोल, नहीं, खाली मैंने उसको लिखने का ही बोला। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिखेगी, उसकी जैसे ही फीलिंग्स चेंज होगी, सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये फादर के साथ उसकी रिलेशन जो ट्रबल्ड रिलेशन है बहुत टाइम के लिए होगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड, बहुत जरूरी है। मान लो आज तो उसने 10 चीजें लिख दी, फिर वापस वही नेगेटिविटी में चले गए, उसके फादर के बारे में वापस
कुछ उसके फादर ने किया और वापस उसको वो नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है अंदर से कुछ ना कुछ, कि यार ये तो मुझे टोकते रहते हैं, ये तो मुझे डांटते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने मेंटेन किया ही नहीं वो ग्रेटिट्यूड। अगर उसने मेंटेन नहीं किया तो फिर वो सिचुएशन कभी भी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड ही मेंटेन्स हिज ग्रेटिट्यूड, ये चीजें इसीलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि क्योंकि आप गाइडेड करते हो। तो मुझे भी जब मैं शुरू में कर रही थी, मुझे भी कितनी चीजें होती थी जो मैं पकड़ नहीं पा रही थी। पर जैसे जैसे आप करते जाते हो, ये चीजें पकड़ में आती है आपके। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको बहुत समझना जरूरी है कि एक बार ग्रेटिट्यूड करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये बार बार करना पड़ता है अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन वहां पे है तो ये भी समझ लो कि आप अपनी जो थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन करो। सो लेट्स रीड फर्दर। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feeling lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. हाँ, तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप 10वें तक जब पहुंचते हो ना, मान लो आपने फर्स्ट लिखा, आपको बिल्कुल फील नहीं हुआ, आपको अभी भी वो नेगेटिविटी आ रही है कि यार इसने साथ मेरे साथ ऐसा किया, यार ये तो मुझे हमेशा डांटता रहता है, या यार ऐसा है जो भी है, वही चीजें आपके माइंड में घूमेगी। पर जैसे जैसे आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, जब तक 9वें पे, 8वें पे, 10वें पे जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड में पहुंचोगे, कहीं ना कहीं पे आपकी फीलिंग्स धीरे 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 इंप्रूव होगी। और जैसे ही आप अच्छा फील करने लगोगे, उनके बारे में भी अच्छा फील करोगे, अपने खुद के बारे में भी आपको अच्छा फील होगा, सिचुएशन के बारे में भी, तो तुरंत ही सिचुएशन बदल जाएगी। ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जैसे नीलम ने चैट में लिखा है कि हाँ ऐसा ही हुआ दीदी, तो हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये गारंटीड है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये 100 कितनी बार मैंने ये यूज किया हुआ है, और ये सिचुएशन तुरंत बदल जाती है जो भी होती है। तो ऐसे ही आपको, अगर आपको किसी के साथ बहुत ही नेगेटिविटी भरी हुई है और वो आपको चेंज करना है, अगर आपको नहीं चेंज करना है तो फिर वहां पे बॉदर मत करना। पर आपको है कि नहीं मुझे ये चेंज करना है, तो हाँ वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करो जब तक आप अंदर से बहुत ही अच्छा फील नहीं करने लगते हो। ये सभी चीजों की, ये प्रैक्टिस की ही बात है। जो लोग ये बुक में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं पे उनके माइंड में ब्लॉक्स होते हैं। ऐसे ब्लॉक्स के वो उनको रोकते हैं ये चीज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, लिखने से, वो सब चीजों से। पर अगर आप जब सरेंडर कर देते हो, वो ब्लॉक्स अपने आप ही हट जाते हैं, वो फिर अपने आड़े नहीं आएंगे। जब आपने बोल दिया कि नहीं, ये बुक जो भी बोलेगी मैं वो करूंगी ही करूंगी, जो भी हो जाए, तो जो भी आपके माइंड के ब्लॉक्स होंगे वो आपको फिर बॉदर नहीं करेंगे। अभी आपको वो बॉदर करेंगे। इसलिए कितने लोग होते हैं जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं पर उसके साथ टिक नहीं पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? ये माइंड के ब्लॉक्स, जो हमारी जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होती है वो इतनी पावरफुल होती है जो हमें ये सब करने से रोकती है। पर यहाँ पे आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, आपको पॉजिटिविटी लानी है, तो ये कन्विक्शन करना ही पड़ेगा आपको। क्या मैं अभी मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए लिख सकती हूँ? इवनिंग में हम मिलने वाले हैं। हाँ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, पहले से ही लिख दोगे तो आप इतना अच्छा फील करोगे। यानी जैसे जैसे आप अपने अंदर के उसको प्योरीफाई करते जाते हो, आपके जो सामने जो पर्सन होता है वो अपने आप बदलता है। आपको लगेगा कि वाह ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा जरूर होता है। तो ये जब भी आप किसी को अपने ओर से अगर गुड फीलिंग्स भेजते हो
वो उनकी तरफ जरूर जाती है। अगर मैं बतुल को भी गुड फीलिंग्स भेजूंगी या आप सबको, आपके सबको वो फील होगी ही होगी, क्योंकि ऐसा ये लॉ है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, इसको बदल नहीं सकते। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I'm so grateful for, or I am truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney way of using gratitude magical power if you find it easier. I am so glad that. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity, practicing by writing. Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it throughout one day. There is an important reason to do this, because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more dose of things. If you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magical lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, "But I have to say that I am really grateful for." Finish the rest of the sentence with anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. तो ये कितनी अच्छी यहाँ पे बात बोली कि एटलीस्ट आज के दिन के लिए, यानी आपको ये कल प्रैक्टिस करनी है, तो कल सुबह उठ के इंटेंशन बना लेना। जब भी आप उठते हो, ग्रेटिट्यूड लिखते हो, एक ये इंटेंशन बना लेना कि आज के दिन में तो मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूंगी। आपका सबकॉन्शियस ही आपको हेल्प करेगा वो चीजें ढूंढने के लिए। जिसमें आप कुछ नेगेटिव बोलने जा रहे हो, वो आपको तुरंत याद दिलाएगी, नहीं यहाँ पे तो तुझे अच्छा बोल, यानी अच्छा सोचना है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना है, ग्रेटफुल होना है। तो आप तुरंत ही स्टॉप इमीडिएटली करना उस टाइम पे, वो बोलना कि नहीं मुझे तो अच्छा ये नहीं बोलना था, मुझे तो ये बोलना है। तो कुछ ना कुछ ढूंढो उस टाइम पे, ग्रेटिट्यूड करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढो और उसके लिए थैंक्स बोलो। तो ये आज को आपको कल पूरा दिन करना है। और हाँ, कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है जिसके बारे में आपको पॉजिटिव, आई एम ग्लैड अबाउट, वो जैसे ग्लैड गेम खेलते हैं वैसे ही वहीं पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के 10 चीजें आपको लिखनी है। ओके, सो ये आपकी प्रैक्टिस होगी कल के लिए। और ये याद रखना कि आपको कल के पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव आता है, आप ये नोट भी करोगे कि माँ माय गॉड कितना सब कुछ नेगेटिव बोलती हूँ मैं, ये भी आपको पता चलेगा कल जब आप अपने वर्ड्स को देखोगे। वॉच करना है आपको अपने वर्ड्स को, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट इज अवर या सो लेट्स रीड। ये वाला पैराग्राफ रहा ना, अभी बाकी है। And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. तो कोई सिचुएशन भी आती है तो उसको, अगर चिंगारी है तो उसको फायर में बढ़ने से पहले ही आपको अपने ग्रेटिट्यूड को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है और वहां पे वो आग वहीं पे बुझा देनी है आगे बढ़ने से पहले ही। समझ में आया? ओके, सो अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। दी मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि है ना हमेशा अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, ठीक है? तो जैसे कि अभी सबके घर में हर लोग तो पॉजिटिव नहीं होते एंड वी आर द क्रिएटर, ठीक है? बट जैसे मेरे घर में सपोज है ना, किसी के घर में ना बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मींस दे हैव अ पर्सनल इश्यूज विद ईच अदर।
तो वहां पे आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कि वो पूरा चेंज हो जाए घर का एटमॉस्फियर? मीन्स हाउ कैन यू गिव वाइब्रेशंस टू दोज सोल्स कि वो पूरे घर के माहौल को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर धीरे सके? धीरे सब चेंज हो जाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड लिखना चालू करोगे ना अपने घर के हाँ। एक सदस्य के बारे में। धीरे हम्म। धीरे धीरे आप ही देखोगे कि पूरी सिचुएशन बहुत काम होती जा रही है। अच्छा, और जैसे कोई अपने से बुराई करता है किसी के लिए, अपन तो नहीं करते, लेकिन कोई सामने वाला करता है फॉर अ शेयरिंग पर्पस, सो व्हाट वी शुड डू एट दैट टाइम? नहीं, वहीं पे रोक दो उनको कि नहीं, मुझे किसी का नेगेटिव सुनना ही नहीं है। या आप वो सिचुएशन में आप खुद चले जाओ वहां से। आपके अच्छा, पास बहाना हमेशा बना के चॉइस चली रहती है। जाऊं मैं? बहाना हाँ, बना के चली जाऊं? यस। आपके पास हम्म। हमेशा ही सिचुएशन है कि नेगेटिव। मान लो मैं जॉब पे हूँ, अगर दो दो लोग बातें कर रहे हैं किसी और के बारे में, मुझे तो भाई वहां से खिसक लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे वो नेगेटिव चीजें, मुझे सोचना भी क्यों है नेगेटिव किसी के लिए? क्योंकि वो चीजें मेरी लाइफ को अफेक्ट करेगी, उनकी लाइफ को तो अफेक्ट करेगी करेगी, मेरी लाइफ को भी। तो यहाँ पे आपको अच्छा, तो बस खिसक लेना है वहां से। अगर सिचुएशन सपोज बहुत खिसकने जैसी भी ना हो, तो वो टाइम पे कोई बुक पढ़ लो मोबाइल में, या फिर यूट्यूब पे कुछ पॉजिटिव देख लो, तो आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा, राइट? यस यस, ऐसा भी कर सकते हो। या तो अगर वो कुछ ऐसी बातें कर भी रहे तो उसको पावर ना दो। जब सिर्फ आप पावर चुपचाप सुन देते, लेना चाहिए। सिर्फ हाँ। चुपचाप सुन लेना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, अगर कोई मुझे किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सुनाता है ना, तो हम्म। जिसके बारे में वो जो नेगेटिव सुना रहा है ना, उसको मैं ब्लेसिंग्स देने लग जाती हूँ। उसके अच्छा, बारे मैं में भी ऐसे ही कंपैशन के करती साथ हूँ। सोचने लग जाती हूँ। हाँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मतलब जब कोई बोलता है ना, तो मैं बोलती हूँ भगवान उसके साथ सब कुछ अच्छा करना, उसको हाँ, अच्छे हेल्थ देना, ऐसे देने लग जाती हूँ। मतलब यस, मेरे साइड से मैं कर्मा क्रिएट नहीं होने देती, ऐसे करती हूँ। राइट राइट, वही आपको करना है। ठीक है, ठीक ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Magic practice number 7. The magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Third, list 10 things that you are grateful for about the negative situation. Fourth, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Fifth, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay, so that's it for today. So सभी को आई होप के सबको समझ में आ गई। बहुत इजी ही प्रैक्टिस है। बस हाँ, आपको कुछ अगर वहां पे नेगेटिविटी में से पॉजिटिव ढूंढना है, तो हाँ, इनिशियली आपको शायद टफ लगेगा क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे करते रहेंगे। अनुष्का, आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है मेरा कि हम लोग जो करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर हम सेलिब्रेशन करेंगे या किसी अच्छी चीज का, आपने सिखा ना तो धन्यवाद कहते तो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि आप बोल रहे हैं नेगेटिव परिस्थिति में से उसको वाला धन्यवाद करें कि भाई जैसे मेरी रिया बीमार पड़ी, मेरे दिमाग में वही आया, तो मैं उसका धन्यवाद करी कि चलो उसकी वजह से मैं उससे ज्यादा प्यार करने लगी, उसकी वजह से मेरे लाइफ में ये आया वो आया ऐसा। तो क्या फिर उससे हम लोग ये जो नेगेटिव स्थिति है, ऐसी और ज्यादा नेगेटिव स्थिति अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि हम लोग नेगेटिव स्थिति का धन्यवाद कह रहे हैं? तो नहीं, कैसे करोगे? क्योंकि आप तो उल्टा नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन है उसमें आप पॉजिटिव ढूंढ रहे हो। आप अपने माइंड से पॉजिटिव सोच रहे हो, तो कैसे आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे? समझ में आया? मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोग धन्यवाद करेंगे, अच्छा मतलब ये बीमारी आई तो मैंने ये किया, तो हम लोग बीमारी को और अट्रैक्ट नहीं करेंगे? मतलब ऐसा नहीं होता है? नहीं, आप बीमारी को क्यों आप थैंक कर रहे हो? बीमारी के बारे में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना। अगर वो सिचुएशन आई है कि चलो हेल्थ बिगड़ी है, तो वो सिचुएशन में क्या क्या पॉजिटिव हुआ वो आपको ढूंढना है।
आपको यहाँ पे बीमारी के बारे में थैंकफुल करना ही नहीं है कि बीमारी आई, नहीं, वो बीमारी की वजह से जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के, और एक्चुअली यहाँ पे तो बीमारी के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं है। अगर आपकी कोई हेल्थ की सिचुएशन है तो वहां पे तो आपको हेल्थ के बारे में ही ग्रेटिट्यूड करना है। अगर मान लो कि बीमारी आई है, दिया को कुछ बीमारी आई है, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, दिया की पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स के लिए शुक्राना करना है। हाँ, सिचुएशन का भी शुक्राना कर सकते हो कि अगर वो सिचुएशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेके आई है तो, कि चलो उसकी वजह से ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला, या उसकी वजह से उसका पापा की तरफ से अटेंशन मिला, या उसकी वजह से मम्मा की तरफ के से भी कुछ अटेंशन मिला। जो भी है वो सब अलग है, वो पॉजिटिव चीजें हैं जो आप ढूंढ के निकाल के वो सिचुएशन के लिए करते हो। समझ में आया? जी ठीक, हाँ। और तो इससे बीमारी हम- को ठीक करने के लिए क्या करोगे, जितना हो सके हेल्थ का शुक्राना, एक एक इसके हाथों का शुक्राना, पैरों का शुक्राना, आंखों का शुक्राना, जो भी चीजें है बॉडी के अंदर सबके लिए शुक्राना। वहां पे आपकी एज ए मदर आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी बच्चों को बहुत अफेक्ट करती है। अगर आप ही सोच लोगे कि यार ये बीमारी आई अब क्या होगा, पूरे चिंता में चले जाते हो, पूरे फियर में चले जाते हो, तो वैसा ही होगा, वो बहुत अफेक्ट करेगा बच्चे को। पर अगर आपके बच्चे को कुछ हुआ और आप ही इतने कॉन्फिडेंट हो कि कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, भगवान तो है ना, सुप्रीम तो है, अच्छा करेंगे, तो ये आपकी पॉजिटिविटी आप अपने बच्चे को दे रहे हो, उससे तुरंत ही फर्क पड़ने लगेगा। अभी समझ में आया अनुष्का आपको? हाँ 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 हाँ, अभी मुझे दी क्लियर क्या हो है गया। इस पे थैंक यू ना मैम। इस पे मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ दी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे वो दीदी को जो उनकी डॉटर का इशू था, तो हाँ हाँ श्योर। मेरे बेटे को ना एक्चुअली फूड एलर्जी थी। कुछ टाइम पहले मैंने डॉक्टर से पता किया था, मतलब वो ईस्ट वाली चीज जो भी खाता था ना, उसको वॉमिटिंग डायरिया होने लग जाता था। तो मैंने ना उसको वाटर अफम कर बॉटल में भर के देती थी और 21 टाइम्स बोलती थी मेरे बेटे की हर एक पार्ट का, हर एक मतलब उसके बॉडी पार्ट सारे हेल्दी हैं, उसका इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ऐसे 21 टाइम्स विद फीलिंग्स के साथ जब मैंने उसको अफर्म करके पानी दिया, और जब वो रात में सोता था, उसका बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है वो टाइम पे। तो हमने सोल प्रोसेस पे जाके उसको हीलिंग ब्लेसिंग्स देनी है, और उसको दोनों मेरे दोनों हैंड्स रब करके उसके हर एक पार्ट को मैं ही ब्लेसिंग्स देती थी। आज ऐसा है वो वड़ा पाव भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, बिस्किट भी खाता है, सब खाता है। Wow, magical. Thank you so much, Neelam, for sharing this. This will give so much insight to many other participants. तो हाँ, ऐसे ही होता है जब आप ब्लेसिंग्स अपने बच्चे को देते, मम्मा की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो आपका एक सोर्स रिलेशन हुआ, राइट? तो बच्चे के लिए आप उसके सोर्स रिलेशन हो, तो आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी, आपका हीलिंग बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है अपने बच्चे को। जैसे ही आप अपने बच्चे की तरफ पॉजिटिविटी देने लगते हो, तुरंत ही वो उसकी जो भी कंडीशन है, अभी जो भी वजह से आई होगी, वो ठीक होने लगेगी। सो आई ट्रूली, या ऐसे ही होता है, मेरे बच्चों के साथ तो बहुत बार होता है। वो बोलेंगे कि मम्मा अचानक मुझे देखो ना थोड़ी सी सर्दी हो गई, मैं बोलेंगे अच्छा बेटा ये चल, मैं तुझे ये गर्म पानी करके देती हूँ, मैं गर्म पानी करती हूँ, उसमें अपने फीलिंग्स डाल देती हूँ अच्छे वाले, दे देती हूँ, दूसरे दिन तो सब कुछ गायब। अभी भी जैसे हम लोग गए थे, दूसरे दिन आए तो अकील ने बोला कि मम्मा, क्योंकि वहां पे हुआ होगा कुछ, खाने में आया होगा जो भी है, तो बोले मम्मा मुझे थोड़ी श्वास में तकलीफ हो रही है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे संचर नमक डाल के पानी गर्म करके देती हूँ। मैंने पानी दिया, मैजिकली दूसरे दिन तो आया ही नहीं वापस पानी मांगने के लिए, क्योंकि आप अपने अच्छे फीलिंग्स, आप अपने विश्वास डाल के देते हो बच्चों के अंदर, तो तुरंत ही वो ठीक हो जाते हैं। तो आपके ही ऊपर होता है अपने बच्चों के बारे में। आपके बच्चों की इम्यूनिटी भी आपके हाथ में है कि कैसे आप अगर सोचते हो कि मेरे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है हमेशा। भले फिर वो ऐसे बच्चों के संपर्क में भी जाएंगे जहाँ पे उनको जिनको ये कोल्ड कफ या फीवर कुछ भी है, तो भी वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो चीजों को कैच नहीं करेगी जल्दी।
क्योंकि आपने वहां पे ये विश्वास दिया हुआ है, तो आपके ही हाथों में है ये सब चीजें। आपका विश्वास, आपकी मैनिफेस्टेशन बच्चों के लिए बहुत काम करती है। ऑफ कोर्स अनुष्कान, थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन आते, कोई सिली क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, इतना समझ लीजिए। यानी जो भी आपके मन में आता है पूछो तो ही आप आगे बढ़ोगे। ये पूरा लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए। तो जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप पूछ सकते हो कई कभी कई भी। बार हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं ना कि भाई हम कोई नई जगह पे जाते हैं तो पहले 2-4 दिन तो बीमारी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा हो जाता है कि भाई नई जगह पे या ठंडी जगह पे गए तो पहले तो सर्दी होता ही, तो वो हमने माइंड में फिक्स कर लिया है, वेरी इसीलिए ट्रू। फिर कहीं भी जाते हैं तो हमको होता है। तो वो अभी हमें अलग बोलने का कि मैं कहीं भी जाती हूँ सब सिचुएशन सब सीजन्स मुझे माफक आ जाती है, ऐसा यस बोलने का ना कि मेरा शरीर सब सीजन के लिए अनुकूल हो जाता है और मैं हमेशा सब कुछ एंजॉय कर सकती हूँ, ऐसा बोलना है ना। यस यस, वेरी ट्रू नीलम जी। बहुत ही अच्छा ओके। पॉइंट आपने यहाँ पे रखा। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं खुद ही हम्म, ठंडी जगह पे जाने से डरती हूँ कि भाई मुझे हाँ ठंडी जगह, लेकिन मैं अभी 3 दिन से ही ये बोलना शुरू किया है, आपका सुना ना उसके बाद कि हाँ भाई मैं हाँ क्यों अपना स्टोरी बनाती हूँ कि मुझे ये फिक्स है कि ये इधर नहीं जाने का, मुझे खुद को चेंज करना है। तो मैंने 3 दिन से ही ऐसा बोलना शुरू किया है कि मुझे सब सीजन अनुकूल आती है, ठंडी में भी मैं जा सकती हूँ, गर्मी में भी मैं घूमने जा सकती हूँ, और मैं सब प्रकार का खाना खा सकती हूँ, तीखा भी खा हाँ सकती हूँ, फीका भी खा सकती हूँ। तो ये मैंने 3 दिन से, मैंने मतलब कुछ चीजें है जो रोज रोज लिखने की फिक्स, ऐसा कर लेके तो हाँ चलेगा, रोज सेम चीज लिखो तो चलता है क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, हमारी क्योंकि जो आपको विश है, अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी है तो वो रोज करेंगे तो बहुत ही उससे बहुत ही जल्दी इफेक्ट होगा, जो भी चीजें मैं आपको लिखती नहीं बदलनी। हूँ, सिर्फ बोलती हूँ, चलेगा क्या बोलना कि लिखना ज्यादा हाँ, जरूरी यानी है? अगर आप बहुत अच्छे फीलिंग्स के साथ बोलते हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आपको लिखना मैं क्यों बोलती हूँ कि कभी कभी इनिशियली फीलिंग्स नहीं आती है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 7-7 बार लिखो, एटलीस्ट कुछ तो सबकॉन्शियस में जाता है। अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, जितनी फीलिंग्स डाल के बोलोगे इतना ही आपका सबकॉन्शियस अंदर चेंज होता है। सबकॉन्शियस को अच्छा फीलिंग्स की भाषा समझ में आती है और लिखने की, अच्छा क्योंकि लिखने में भी अच्छा। बहुत ही इफेक्ट होता है। तो हाँ, ये पिक्चर हो चीजें गया जब, इसलिए, हाँ, तो जितना लिखा मतलब वो फीलिंग्स, पिक्चर हो गया ना तो वो दिखता है ना, राइट राइट, ऐसा पिक्चर की होगा। तरह, हाँ, पिक्चर की जैसे जितना पिक्चर्स बनाते हो कि वाओ आई एम एंजॉइंग इन द कोल्ड वेदर, आई एम ईटिंग एवरीथिंग, मैं बहुत मजे कर रही हूँ, जितना विजुअलाइज कर पाते हो वो ज्यादा ही अच्छा है। मैं आपको अपना भी यहाँ पे एक अच्छा, एग्जांपल दूंगी कि हाँ जैसे सब लोग बोलते थे हमेशा ही कि जैसे बाहर लोग रहते तो वहां पे बहुत ही साफ सुथरा है तो इंडिया में आके बीमार पड़ते हैं, बहुत से लोग बोलते थे। मैं आपको बताती हूँ, मैं अब तक इंडिया जब भी आई हूँ, मेरे बच्चे या मैं कभी बीमार नहीं हुए। अगर कुछ हुआ भी होगा तो 1 या 2 दिन के लिए तुरंत ही वापस बाउंस बैक कर जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को ये बिलीफ को अफेक्ट करने ही नहीं दिया कभी भी। ये जो बिलीफ सब नहीं, लोग उसमें हमारे, इंडिया खराब है इसलिए होता है, ऐसा नहीं होता है। एक प्लेस का क्लाइमेट अलग होता है, दूसरे प्लेस का क्लाइमेट अलग होता है। यस तो यस आप एक एग्जैक्टली, क्लाइमेट में क्लाइम इंडिया खराब है इसीलिए अफेक्ट होता है, कोई बीमार पड़ता है, ऐसा नहीं। इंडिया वाला अगर दुबई में जाएगा तो उधर की गर्मी नहीं सहन कर सकेगा, तो उसको भी, यहाँ राइट, कनाडा एग्जैक्टली जाएगा तो एग्जैक्टली। उसकी हाँ, ठंडक भी वो यानी ये सहन भी कर। हमारे अंदर ही है माइंड में, गर वही मैं बता रही हूँ कि एकदम हाँ, साफ मतलब सुथरी जगह इंडिया पे रहने के खराब है बाद, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, डस्ट इधर में जाते करोड़ हैं लोग लोग। रहते हैं तो खराब राइट, होता है तो करोड़ लोग नहीं रहते ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं वही बता रही हूँ यहाँ पे कि कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं एकदम साफ सुथरी जगह पे रहते हो, और कभी कभी ऐसी जगह पे हाँ जाते हो वहां पे डस्ट ज्यादा है या जो भी है तो आप बीमार पड़ते हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही आपको बता रही हूँ यहाँ पे। बराबर, हमें अगर हमारा आपकी हमारा इम्यूनिटी माइंडसेट स्ट्रांग चेंज है, करना है। हाँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कहीं पे भी चले जाओ वर्ल्ड में, आपकी बराबर। बिलीफ स्ट्रांग है कि हाँ मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ये बिलीफ है। आप अपने अंदर की बॉडी को भी इतना स्ट्रांग बनाते हो अपनी खुद की बिलीफ के साथ कि क्या बिलीफ है कि हम्म। नहीं मेरी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है, तो आप कहीं पे भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी आप बीमार नहीं होगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी हमेशा। मैं यही बता रही हूँ, राइट।
दी हाँ बचपन में जब स्कूल में होते थे, साइंस टू हर किसी को रहता था आई थिंक, तो उस टाइम पे ना स्कूल्स में ना माइक्रोस्कोप के नीचे हमें हाथ रख के बताते थे, उसमें सेल्स वाइब्रेट होते थे, राइट? राइट। तो तब मुझे समझ में नहीं आता था, बट अभी जब जैसे से इन चीजों को ज्यादा डीप में सुन रही हूँ, कर रही हूँ, तो हमारे बॉडी पार्ट्स ही पूरे सेल से बने, तो जब हमको जो एक्शन देंगे सबकॉन्शियसली, तो वो एक्टिव करेगा ही करेगा। यस पूरा यस खेल बिलीफ सिस्टम का ही है हमारा, और उसको यस। क्लियर करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा अपने को। और हम जो भी हमारे फीलिंग्स होते हैं ना, हमारी पूरी बॉडी उस पे, वो फीलिंग्स पे वाइब्रेट करती है, वो हाँ, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मुझे ना कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले इतना बॉडी और फीवर था, तो मुझे पता था कि मेरा माइंड बोल रहा था तुझे कुछ भी नहीं है, बट मुझे लग रहा था नहीं, मैं होम्योपैथिक वाला ट्रीटमेंट करूंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसे लग रहा था मुझे। मैंने हम्म। किया, और उसमें वो भैया बहुत नॉर्मल दवाई देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, पानी में डाल के देते हैं। उसके बाद मैं विद इन 1 डे ठीक हो गई। तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है ना। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर आप घर में किसी को बोलते हो, वो बोलते कि चलो अच्छा मैं तुझे ये बना के दे देती हूँ, आपके सबकॉन्शियस को अगर वो उसमें बिलीफ है, फेथ है, तो उससे भी आप ठीक हो जाते हैं, दवाई लेने हाँ की भी जरूरत बिल्कुल। नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बतूल, आपको कोई और क्वेश्चन मैंने है ना, यहाँ पे? मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि हर एक बॉडी पार्ट को ना आफ्टर मेडिटेशन ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, कि वो टाइम पे जो एनर्जी होती है हमारे हाथों में, हमारी बॉडी में, वो हाँ, मैं बहुत वही ज्यादा करवाती पावरफुल हूँ, मेरे होती है। मेडिटेशन में हाँ रोज करवाती हूँ। हाँ। पूरा ब्लेसिंग्स, पूरे बॉडी को हमारे हाथों से हमें ब्लेस करना है। बहुत ही हाँ अच्छी एनर्जी होती है वो उस टाइम। हाँ। जी मैं जी। वही ब्लेसिंग्स करवाती हूँ। हाँ जी। अलीफा बेन, हाँ। अपने अफर्मेशंस अपने मॉर्निंग में लखी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो પછી होल डे आउट वी कैन राइट एनी टाइम वी कैन, इफ यू वांट टू राइट। या यू कैन राइट, बट मॉर्निंग में जो भी करोगे वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जो भी आप मॉर्निंग में करते हो, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस भी एक्टिव है, लोग भी सो रहे हैं, यानी यूनिवर्स में भी वाइब्रेशंस कम है, नेगेटिविटी के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो भी कम है। એટલે મોર્નિંગ માં મેં લખું છું જે हम्म, આઈ ચૂઝ હેપીનેસ એન્ડ આઈ એમ હેપી, આઈ એમ ઓપન એન્ડ રિસેપ્ટિવ, ને જે વન અફર્મેશન રોજ હોય છે નવું એ મેં લખું જ છું, પણ આપણે હોલ ડે આઉટ પછી શું કે એટલો ટાઈમ કોપ અપ નહીં થતો, મોર્નિંગ બધું હોય રિચ્યુઅલ્સ આતે, તો પછી હોલ ડે પછી પછી તમારે ટાઈમ મળે ને તમારે એમ થાય કે મને અફર્મેશન લખવાની જરૂરત છે, મને हाँ કઈ છે, हाँ, મને पूरा दिन। मैं तो अभी, मेरा तो कभी कभी कैसा होता था, मैं पूरा दिन यही में लगाती थी, क्योंकि अपने माइंड को चेंज करना है ना, इट्स नॉट स्मॉल टास्क। पूरा दिन आपको पॉजिटिविटी में रहना है, पूरे दिन 50% से एबो वाली फीलिंग्स में रहना है। तो कभी कभी नेगेटिविटी आती है, तुरंत ही लिखना चालू कर दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो बहुत एफर्मेशंस करती हूँ। अभी जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई, तुरंत ही अपने माइंड में मैं बोलना चालू कर देती हूँ, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम कॉन्फिडेंट। तो जितने एफर्मेशंस करोगे, इतने ही वो जो नेगेटिव बिलीफ है वो चेंज होके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। बहुत ही जरूरी है। तो मैं जैसे अब मैंने कल आमिना को भी बोला था कि जितने हो सके एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते ही रहो अपने आप को पूरे दिन में। इसीलिए जितना हो सके ग्रेटिट्यूड भी करते रहो, क्योंकि थैंकफुलनेस में रहते हो तो आप नेगेटिव चीजों में कम जाओगे। जितना आप थैंकफुलनेस में रहोगे, दो चीज तो एक साथ नहीं कर पाते ना, नहीं कर सकते, या तो नेगेटिव करोगे या तो पॉजिटिव। तो जितना थैंकफुलनेस में रहोगे, जितना वही सोचते रहोगे, तो नेगेटिविटी में जाने का सवाल ही नहीं है। एक साथ ज्यादा अफर्मेशंस फिर सब इफेक्ट करते हैं। यानी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा अलग अलग एफर्मेशंस लेके कंफ्यूज कर दो माइंड को, नहीं, एक ही एफर्मेशंस को बार बार बोलो। हाँ हाँ, ऐसे 5-6 फिक्स कर दिए हो और हाँ, उसको ही 4-5 रोज आपके जो दोहराते फिक्स रहो। है उसको बार हाँ, बार 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 बोलते बार रहो। बार बोले। हाँ हाँ, बराबर। ओके, तो आज हम पावर बुक मुझे लगता है नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मुझे भी जॉब पे जाना है अभी 5 मिनट्स के अंदर। तो मैं फटाफट हार्ट थॉट्स ले लेती हूँ और फिर यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। तो all my experiences are right for me. Fear comes from not trusting the process of life to be there for you. The next time you are frightened, say, I trust the process of life to take care of me. तो जब भी आपको डर लगता है कोई भी चीजों से, आपके अंदर डर कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बचपन में से भी आपने अगर लिया है तो वो डर आता है, अभी भी आएगा। तो तब आपको ये एफर्मेट करना है,
क्या करना है कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ टू टेक केयर ऑफ मी। तो ये अफर्मेशन तो मैं आपको हमेशा करवाती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप जैसे जैसे ट्रस्ट करने लगोगे अपनी लाइफ के प्रोसेस पे, वैसे वैसे आपकी सिक्योरिटी जो लेवल होता है अंदर का वो बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट बढ़ता जाएगा और डर कम होते जाएंगे। So we have been going through doors since moment we were born. That was a big door and big change. We came to this planet to experience life this particular time around. We choose our parents and we have been through many doors since then. We came equipped with everything within us that we need to live this life fully and richly. We have all the wisdom, we have all the knowledge, we have all the abilities and all the talents. We have all the love and all the emotions that we need. Life is here to support us and take care of us. And we need to know and trust that it is so. Doors are constantly closing and constantly opening. And if we stay centered in ourselves, then we are always safe, no matter which doorway we pass through. Even when we pass through the last doorway on this planet, it is not the end. It is the beginning of another new adventure. So let us know that we are always safe. It is all right to experience change. Today is a new day and we will have many wonderful new experiences. We are loved, we are safe, and so it is. तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि लाइफ हमें कुछ ना कुछ नए डोर्स देती ही रहती। अगर कुछ डोर बंद होते तो समझ लो वहां पे कुछ ना कुछ नया आ रहा है। और हमें ये लाइफ मिली है, हमारे अंदर ही सब एबिलिटीज है, हमारे अंदर ही सब टैलेंट्स है, हमारे सब अंदर जब सभी कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ को फुल्ली और रिचली कैसे लिव करनी है, जो भी वो लिव करने के लिए चाहिए वो सभी हमारे अंदर है। वो इवन विजडम भी हमारे अंदर है जो हमें अभी बाहर लाना है। इसलिए ये एफर्मेशन मैं हमेशा अपने आप से करती हूँ कि आई एम गाइडेड बाय माय इनर विजडम। तो ये इतने सारे एफर्मेशंस है जो कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो, कर सकते हो। और ओके, यहाँ पे हमें सेशन को कंक्लूड करना पड़ेगा और वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द पावर बुक। और एक्चुअली अभी मुझे पता नहीं है, मेरी कलीग को मैंने बोला हुआ है, तो कल मेरी शिफ्ट है 5 बजे की, यानी मैं ये सेशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये सेशन होता है हमारा यहाँ के 5:15 बजे। पर मैं ये सेशन आपके वहां के सुबह के टाइम पे ले लूंगी, यानी मेरे आज रात को, यानी आपकी वहां पे सुबह होगी। तो सुबह अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने ग्रुप में डालूंगी, ठीक है? तो फिर आप सब लोग ग्रुप में मैसेज पढ़ लेना और मैं फिर लिंक भी भेज दूंगी, तो आप वो ज्वाइन भी हो जाना। अगर सेशन होगा तो आपके वहां पे सुबह आई थिंक इट्स 6:45, यस इट विल बी एट 6:45, ठीक है? सो ओके, थैंक यू so much. Love, light and abundance to all of you. Thank you. You can do your Thank you. own meditation today with the help of maybe Luke Coutinho लिखना YouTube पे, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है? I have to go, I'm so sorry. So Thank you very much. thank you everybody. Love, light and abundance to all of you. Thank you. Thank you so much for joining in. And Thank you, Lifa Ben. Have a nice day. thank you. You all have a nice day and see you tomorrow. Okay, bye, Lifa Ben. Bye.